Hello and welcome back to Motivated Monday. So, in this video, I'm going to tell you how you can stop overthinking. So, before I get into the hows, let me tell you कि मुझे कब realize हुआ कि I have this, problem of overthinking. तो one day I was very tired और ये actually धीरे धीरे ना एक norm बन गया था मेरे लिए. It was like a habit, an everyday schedule sort of situation हो गया था. सो आई वॉज वेरी टायर्ड एंड टू द पॉइंट कि अगर मैं बेड पे ऐसे लेटूँ तो आई वुड जस्ट फॉल अस्लीप. ओके, बट इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि जैसे ही मैं लेटी माई ब्रेन वेंट ऑन लाइक चलो सोचते हैं वो जो 4 साल पहले तूने ड्रामा किया था उसके बारे में सोचते हैं, या वो जो तूने ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट किया था, वो जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में सोचते हैं. एंड कट टू द होल नाइट जहाँ मुझे सोना था, आई रियलाइज कि इट्स ऑलरेडी 4 AM and I haven't got a shred of sleep. Okay, so that is when I realized कि okay, मुझे overthinking का कीड़ा तो है भाई. And I'm sure this happens with you too. If not, trust me, you are the lucky one कि तुमको ऐसा overthinking का कीड़ा नहीं है. But if there is anybody else who overthinks a lot to the point कि social media पे scroll करते करते you're comparing your life to other people's lives, so then welcome to the video, my friend. So now let me tell you what is overthinking. Overthinking is basically a mental noise जो हमारा brain अपने आप को एक uncertain environment से बचाने के लिए create करता है. It tries to fix the things that have already happened. brain को नहीं पता है कि अगर तुम overthink करोगे तो वो चीज़ें past में resolve नहीं होंगी. It's trying its best कि best case scenario क्या हो सकता था. ठीक है, so yeah, बिफोर तुम्हें लगे कि क्या बार बार चेक कर रही है, लेट मी टेल यू आई हैव गॉट माई पॉइंट्स रिटन डाउन क्योंकि थोड़ा भूल जाती हूँ. सो या आई डोंट वांट टू कीप एनीथिंग दैट आई हैव बीन डूइंग सो फार. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेथड दैट आई हैव बीन यूजिंग इज बेसिकली द 5-minute रूल. 5-minute रूल क्या है और मैंने कहाँ से इसको कैच किया और कब से अप्लाई करना स्टार्ट किया? आई थिंक इट्स बीन मोर देन 1 year or something that I've been applying these methods. तो I can guarantee these are full proof. And ऐसा नहीं है कि मैं हर मेथड रोज अप्लाई कर रही हूँ. There are some things that I'm doing almost daily and some things when I feel like okay, अब बात सर के ऊपर से जा रही है, I need to do something, तो I do them then. तो coming back to the 5-minute rule, मैंने ये एक क्लिप से देखा था, इंस्टाग्राम का ही कोई क्लिप था. I don't know if it's from a movie, TV series or what, but I saw it कि एक guy, there is a guy who's sitting in a cafe or maybe a library kind of situation. I don't exactly remember, but let's see. Let's assume it was a cafe, okay? तो वो कैफे में बैठा हुआ है and he's crying his heart out, his eyes out. और the moment his alarm goes off, he's silent. He just wipes off his tears. He's all fresh and he moves on with his life. So that is what 5-minute rule is. अब यार I am very emotional person. अब ऐसा नहीं कि 5 मिनट पे अलार्म बजेगा मैं चुप हो जाऊंगी एकदम से and I'll just robotically move on with the life. No, that doesn't work with me. So what I do is I only take 5 minutes. So 5 minutes से ज़्यादा नहीं देती हूँ मैं किसी चीज़ को, especially अपनी overthinking brain को. So what I do is I put up an alarm for first 2 minutes and then next 3 minutes. Total 5 minutes. तो पहले 2 मिनट में जब वो अलार्म बजता है, नो कि okay, time is running out. I need to process my feelings quickly. क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बहुत important नहीं है मेरी लाइफ में. I can't give them my whole day. तो ऐसी चीज़ों के लिए आई यूज दिस 5-minute रूल. ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ द 5th minute आई एम डन विद ऑल ऑफ दोज थॉट्स. आई एम जस्ट डन विद देम एंड आई एम बैक टू माई प्रेजेंट, माई लाइफ. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज ब्रेन डंप. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये एक पेपर पेन थोड़ा ट्रेडिशनल सा मेथड है. सो एंड इट इज़ वेरी क्रिएटिव टू. और मैं एट टाइम्स एग्जैक्टली पेपर पेन यूज नहीं करती हूँ. लेट मी शो यू हाउ आई डिड इट. दिस आई क्रिएटेड दिस. ओके, सो what we have to do about this one is either you can doodle, scribble or you can even write down. ठीक है, तो जो भी तुम्हारा थॉट है either you can write it down if you are the kind of person who's into writing stuff down. I am not. I would rather create something, be it a mess. Okay, ये जो मैंने तुमको अपनी डायरी दिखाई थी इसी में I create the messes. Okay, so I'll just scribble something, I'll draw something out. ठीक है, तो in this method you're going to draw things और मे बी जस्ट खुचड़ पुचड़ कर दो, जो तुम्हारे ब्रेन में चल रहा है उसी को लेकर के खुचड़ पुचड़ कर दो. दैट इज ऑल्सो फाइन. ओके,
and just ask yourself this one question: can I resolve it right now? क्या इसका अभी कोई सोल्यूशन है मेरे पास? If yes, good for you, act on it. If no, release it with that drawing. ठीक है, उस ड्राइंग के साथ उस इमोशन को, उस ओवर थिंकिंग, उस नॉइस को जस्ट रिलीज कर दो प्लीज, एंड मूव ऑन विद योर लाइफ. नाउ मूविंग ऑन टू द third pointer. The third pointer is, okay, I'm forgetting, let me just check once. Yeah, oh, get back into your body. Oh, my favorite one. Okay, ठीक है. तो इसमें यार, हाँ, मैंने इनको थोड़ा नाम दिया है ताकि तुमको भी याद रहे चीजें. सो गेट बैक इनटू योर बॉडी का मतलब ये नहीं है कि क्योंकि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक स्पूकी स्पिरिट बुला रही हूँ. No, I know you're already in your body, but the problem is कि overthinking, जैसा मैंने तुम्हें बताया, is a mental noise. And in order to silence it, how I do it is I do it through physical activity. ठीक है, तो a lot of you are going to like it, some are not going to like it, so totally your call. So what I do is I'll go for a run. I'll run up a flight of stairs. अगर तुम्हारे पास stairs नहीं है, पार्क में जाओ, पार्क में दौड़ कर आओ. पार्क नहीं है, ब्लॉक है ना, बिल्डिंग ब्लॉक है, उसमें उधर उसके आसपास दौड़ करके आओ. जस्ट फाइंड योर सेल्फ अ स्पेस टू रन, टू एग्जॉस्ट योर सेल्फ फिजिकली. और दौड़ना इतना नहीं है कि बस एक चक्कर मारा और आ गए, टिल यू आर लाइक ब्रेथलेस. ठीक है, इतना दौड़ो कि तुम्हें ऐसा सांस फूलने लगे तुम्हारी, सो दैट योर ब्रेन गोज फ्रॉम दैट ओवर थिंकिंग को. छोड़ो भाई, क्या इसको क्या हो गया, मर क्यों रही है, इसको सांस क्यों नहीं आ रहा है. सो वो वहां से हटके इधर आ जाएगा. यू विल रियलाइज कि तुम्हारी फिजिकल हेल्थ ज्यादा खराब है. तो यू विल बी बैक टू योर मोमेंट, यू विल बी बैक टू प्रेजेंट, और वो ओवर थिंकिंग स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, दैट इज अनदर वे. एंड नेक्स्ट मेथड, फोर्थ मेथड इज रिप्लेसिंग व्हाट इफ विद इवन इफ. अब ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि ब्रेन हम हर वक्त पास्ट में स्टक है. ओवर थिंकिंग तुम प्रेजेंट फ्यूचर के लिए भी कर सकते हो. ब्रेन को तो सिर्फ प्रेजेंट एस्केप करना है ना. तो होता है, मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है, मैं बहुत ज्यादा ऐसा फ्यूचर का सोच के स्ट्रेस लेती रहती हूँ. सो व्हेनेवर आई हैव दिस, अगर ऐसा हो गया तो, व्हाट इफ दिस हैपेंस और दैट हैपेंस, सो आई जस्ट पॉज माई सेल्फ, गिव माई सेल्फ अ मोमेंट, एंड आई गो इनटू दिस. अगर ऐसा हो भी गया ना तो आई विल डू दिस, इवन इफ दिस हैपेंस आई विल डू दिस. ठीक है, सो प्रोवाइड एन एस्केप रूट टू योर ब्रेन कि ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेंगे भाई. ठीक है, अगर ब्रेन इज सेइंग कि कल को कुछ ऐसा हो सकता है एंड यू माइट नीड मनी, तो यू से ओके फाइन, आई विल वर्क इट आउट टुडे ओनली. मैं आज ही से कमाना शुरू करके आई विल जस्ट होल्ड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, या मैं यहाँ से लोन ले लूंगा, कुछ कर लूंगा. जस्ट गिव योर ब्रेन अ सोल्यूशन. अपने ब्रेन को सोल्यूशन ढूंढने पे लगा दो, रादर देन कि उसी चीज के लिए ओवर थिंक करते जाओ. ओके, एंड लास्टली इज वाइंड अप द डे. वाइंड अप द डे के लिए बहुत लोग बोलते हैं दैट यू शुड राइट थिंग्स डाउन, बट अगेन आई एम नॉट अ राइटिंग और जर्नलिंग टाइप ऑफ पर्सन, बट इफ यू आर, ग्रेट फॉर यू. अगेन दिस वन यू कैन डू. और जो लोग नहीं लिखते हैं वो भी कर सकते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो डू दैट थिंग. सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट थिंक ऑफ द 3 थिंग्स दैट आई एम रियली ग्रेटफुल अबाउट और आई एम ब्लेस्ड विद, जो आज ही हुई. अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक मैं घर नहीं खरीद लूंगा तब तक आई एम नॉट ब्लेस्ड विद एनीथिंग. नो, I am blessed that I woke up. I am blessed कि मैंने अपना वो जो 3 liters of water पीना था वो मैंने पी लिया. ठीक है, so count your small blessings. I am blessed अगर I don't have a pet. Okay, so if I'm going out and I see a small dog or cat, I'm blessed to have that, like kitten or cute pup. If I see those things, I'm happy about the day. Okay, so I'm sure you have your little joys throughout the day. ऐसा नहीं होता है कि आपका पूरा 100% डे खराब हो. You woke up, you are breathing just fine. These are also your blessings. ठीक है, and once I'm done with these 3 things, I'll count one thing जो मुझे कल करनी है. Now it could range from एडिटिंग तो मैं नहीं करती हूँ, एडिटिंग ऑफ माई बुक्स. हाँ, मैं अपनी बुक्स को एडिट कर लेती हूँ, द बुक्स दैट आई एम राइटिंग. एंड अदरवाइज आई विल जस्ट सिट विद रिकॉर्डिंग द वीडियो. और अगर वीडियो एडिट भी करना है तो आई जस्ट कवर पेज एंड स्टफ लाइक दैट, क्योंकि मैं बहुत फॉरगेटफुल हूँ. तो आई जस्ट हैव टू राइट इन द टेक्स्ट कि क्या क्या था जो मैं भूल गई हूँ, मुझे यहाँ टेक्स्ट में डालना पड़ेगा तुम्हारे लिए. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, या फिर मुझे कुछ पढ़ना है, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट कंप्लीट करना है, और मे बी
2 hours of no screen time. That is also sometimes on my to do list for the next day. ठीक है, so your to do list or your winding up the today doesn't have to be major कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है तभी उसको तुम इंक्लूड करोगे. छोटी छोटी चीजों को भी you can just include in that list. Okay, so with that said, these are the only things that I practice, and never ever think कि overthinking का मतलब है you are mentally weak और तुम weak हो, weakness का sign है. No, it is just a sign that you are over caring. ठीक है, केयरिंग होना अच्छी बात है, बट ओवर केयरिंग समटाइम्स टेक्स अवे फ्रॉम योर प्रेजेंट विच वी डू नॉट वांट. ठीक है, सो ऑलवेज प्रोटेक्ट योर पीस, ट्राई to use these methods, and I hope these are helpful for you, and I'll meet you in the other video, another motivated Monday. Bye bye.